Hello everyone. Welcome for this session. So this lecture will be a brand new lesson. So in this, we are going to learn about metals and non-metals. Just now we have finished our three lessons: crop production and management. Second, microbes, and third one, synthetic fibers and plastics. These three lessons just we have finished. Okay. So I hope you have enjoyed that very well because all those three lessons are very important for your ninth standard and 10th standard. Okay, so this is the introduction session for this lesson, that is metals and non-metals. Before beginning the metals and non-metals, uh, let's have a look of the stories of few scientists. Okay, J.J. Thomson, Mendeleev. Okay, so these are the scientists. Okay, so we have a different ages: Stone Age, Bronze Age. Okay, okay, Ice Age. So we have these kind of ages. Why they are named after these ages? Stone Ages. Stone Ages named when the human beings started using the tools which is made up of stones. Okay, Stone Age. Okay, Ice Age. Everywhere there was ice cold situation. Ice Age. Bronze Age. Okay, Bronze Age, that metals are invented in that age. So it is named after that. Now, there were the few things from our ancestors we were using. Okay, and behind using that things, we have some specific reasons. Okay, by using that things, we have specific reasons. Gold is always considered as a precious metal from the ancient time. Gold is considered as a precious metal. Gold, silver, diamond. Okay. So these kind of the materials that whatever they're using, iron is used as the strongest material. So many things which are made up of iron. Okay, whatever we are using in our daily life, in our ancient time, the swords, uh, cannon. So these things are made up of iron. Okay, so iron was a material, gold is a material. Okay, so afterwards, silver is a material, bronze, which is used in ancient time, that was also a material. So these materials, okay, slowly, we have introduced towards the few materials. Some of the materials have a specific properties, some have a different properties. Okay, lead is invented. Okay, coal is also a material. Okay, so we have a lot of materials. हम लोगों के पास बहुत सारे क्या थे materials, और वो materials हम लोगों ने क्या किए, हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे थे. ठीक है, अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल देखे, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं. क्योंकि एक्चुअली अगर चाहे उसको एक रफली अगर हम लोग उसको नाम देना है तो हम लोग उसको मटेरियल्स बोल के नाम देंगे. ओके, वी डिफाइन इट एज अ मटेरियल्स. हम लोग उसको मटेरियल्स ही क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. ओके, सो अभी ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मटेरियल्स हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे थे. बट when few people observe those materials, okay, when the people observe those materials, they have understood some common things in the materials. Okay, and then they sort out those materials according to their properties. पहले क्या किया हम लोगों ने, ऑब्जर्व हम we are using, and I hope we are using so many materials. 1 rupees coin. ओके, कॉइन को ऊपर फेंकने के बाद कॉइन जब नीचे आता है, सरफेस हार्ड होगा तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप की आवाज आती है. ओके, मैंने ऊपर फेंका कॉइन, नीचे गिरा, आवाज आ रही है. एक आयरन नहीं लिया, ऊपर फेंका, नीचे आवाज आ रही है. एक इरेजर लिया, ऊपर फेंका, आवाज नहीं आ रही है. सो what we can say,
there is something common in iron nail and coin. Okay, but the same thing is not common in the eraser. वो चीज कॉमन नहीं है. Okay. एक आयरन का छोटा सा गोल्ड पीस ले लिया मैंने. ओके, और उसको मैंने पत्थर पर रख दिया, ये किसी सरफेस पर रख दिया, और उसके ऊपर मैं दूसरे हिस्से मार रहा हूँ, हाथों से उसको मारते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ, टूट ही नहीं रहा, वो ब्रेक नहीं हो रहा. इट इज नॉट ब्रेकिंग, बट उसके शेप में चेंज आ रहा है. वो क्या हो रहा है, एकदम थिन थिन, पतला 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 टर्न होते जा रहा है. वही मैंने एक कोल ले लिया, कोल के ऊपर जोर से हैमर मारा, कोल टूट गया. वही एक सिल्वर का चीज ले लिया, उसको ठोकता गया, टूटेगा क्या, नहीं, वो भी शीट में बन गया. There is something common in that iron, piece of iron and silver, which is not common in the coal. वो कोल में common है. Okay, so whatever we have observed that, जो changes आ रहे हैं, जैसा कॉइन मैंने ऊपर फेंका, नीचे आया, छन आवाज किया, आयरन के नेल को फेंका, आवाज किया, इरेजर का आवाज नहीं आया. ओके, वही मैंने आयरन पीस को ठोकर उसको क्या किया, शेप बना दिया. सिल्वर का भी वैसे ही किया, लेकिन कोल का नहीं हुआ. ओके, सो इसमें भी क्या आ गया, दोनों में कुछ तो चीजें कॉमन नहीं है. ओके, ये दोनों में कॉमन है कि इसको ठोकने के बाद ये पतले हो गए, मुझे टूट गए. गोल्ड स्मिथ, हैव यू ऑब्जर्व द गोल्ड स्मिथ? गोल्ड स्मिथ के पास लेडीज, कोई भी जब औरतें उसके पास में आती हैं तो ऑब्वियसली उसका पूरा पेज छानती है. वाओ, व्हाट इज द डिजाइन, बेस्ट डिजाइन, ये इतना अच्छा डिजाइन, ये आपको जैसा चाहिए वैसा गोल्ड स्मिथ आपको डिजाइन कर निकले. जो कुछ है लेडीज के लिए, वो उसको दे वियर इयररिंग्स अलग अलग टाइप के इयररिंग्स होते हैं. आपको जितने डिजाइन चाहिए उतने डिजाइन बना कर देते. आप उसको बोलोगे मुझे एकदम ऐसे ही डिजाइन चाहिए जिसका जो तार होता है, मैं उसको एकदम पतले गोल्ड में, जिसको मैं गोल 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 करके पहन सकूं, तो आपको वो गोल्ड के एकदम बारीक तार बना कर देगा. जितना अभी आपका जो थ्रेड होता है, थ्रेड जो हम लोग सिविंग के लिए यूज करते हैं, वो थ्रेड का अगर से आपको गोल्ड का नेकलेस चाहिए, उतने थ्रेड का गोल्ड का नेकलेस बन सकता है. उतना थ्रेड का नेकलेस क्या करेगा, वो बनेगा. सिल्वर का भी एकदम बारीक थ्रेड बना कर देगा आपको गोल्ड में. ओके, एकदम. लेकिन मैं उसको बोलूँगा नहीं, मुझे कोई वुड का पीस है, वुडन पीस है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उससे मुझे बना कर देना. इज इट पॉसिबल? गोल्ड और सिल्वर से बन सकता, इससे बनेगा क्या, नहीं बनेगा. ओके, जैसे ये चेंजेस है, आवाज आया, बारीक शीट बना दी मैंने, एक छोटा सा बारीक तार बना दिया. तो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, उनके फिजिकल अपीयरेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. आवाज ऊपर फेंकने से उसका जो फिजिकल से आवाज प्रोड्यूस हुई, उसको ठोक ठोक के उसका फिजिकल जो मोटा था एकदम थिन शीट बन गया. ओके, इससे एकदम बारीक तार बना दी गोल्ड के रिंग से. भी वही सेम एक लकड़ी है, मैंने क्या किया, इसमें पकड़ लिया, यहाँ पे आग लगी हुई, आग में पकड़ा, दोनों आग में. मैंने एक हाथ में मेरी लकड़ी है और एक हाथ में क्या है, मेरे आयरन का रॉड है. ओके, बोथ आई एम होल्डिंग देयर, दोनों भी मैंने आग में पकड़ा. 5-10 मिनट के बाद क्या होगा, व्हाट विल डू आफ्टर 5 मिनट के बाद, वो लकड़ी का जो वो एरिया है वो जल के टूट जाएगा. बट आयरन, जिस हाथ में मैंने आयरन रॉड पकड़ा है, मुझे स्लोली गर्म लगेगा, और थोड़ा गर्म, और थोड़ा गर्म. ओके, सो फाइनली 15-20 मिनट के बाद मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दूंगा मैं, इतना गर्म लगेगा. बिकॉज वहां पे क्या रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है. ओके, उधर की जो हीट है ट्रांसफर होते होते ये कॉर्नर पे आ गई, मतलब वाटर रीजन से हीट किधर हो गई, गोल्डन रीजन से हो गई.
एंड लकड़ी के पीस में क्या हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं हुई, वहीं की हीट वहीं पे स्टॉप है, इधर यहाँ तक अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, सो ये भी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा। उसके फिजिकल क्या हो गया कि वहाँ की जो हीट थी उसने इधर तक ट्रांसफर कर दी, और इसका फिजिकल क्या हो गया, वो वहीं पे जल के टूट गया, सिर्फ इतना बाकी का हिस्सा मेरे हाथ में। सो व्हेन द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व, जो मटेरियल्स है, सारे मटेरियल्स को हमने कैटेगराइज किया है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ओके, तो जितने भी मटेरियल्स हम लोगों के पास में, जितने भी मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। अभी मेटल्स नॉन मेटल्स हमने उसको कैटेगराइज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमने उसको कैसा डिफरेंशिएट किया। देखो, आपको 6th स्टैंडर्ड में एक लेसन था, सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स। आपको अगर जो ध्यान में होगा, 6th स्टैंडर्ड को आपको एक लेसन था सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स। तो सॉर्टिंग आउट करना है, क्या करना, अलग करना, डिफरेंशिएट करना। हाउ डू वी सॉर्ट आउट, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कैसा करते हैं, हम लोगों ने क्या किया था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे। ओके, अगर आपको ध्यान में होगा, थोड़ा सोचो, आप थोड़ा बैक में जाओ, फ्लैश बैक में जाओ। ओके, क्या था, हमने कैसा मटेरियल को सॉर्ट आउट किया था, अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, ओके, सिंक और फ्लो। ये क्या थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हम लोग क्या करते थे, हार्ड सॉफ्ट, जो इजीली कंप्रेस होता है वो हार्ड मटेरियल है, और सॉरी ओके, जो इजीली कंप्रेस होता है वो सॉफ्ट मटेरियल है, और जो इजीली कंप्रेस नहीं होता वो हार्ड मटेरियल। द मटेरियल व्हिच कैन कंप्रेस इजीली सॉफ्ट मटेरियल, द मटेरियल व्हिच कैन नॉट कंप्रेस इजीली कॉल्ड हार्ड मटेरियल। ओके, सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया है। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने डिफरेंशिएट किया अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज ओनली, यानी यहाँ से जो इनको जो डिफरेंशिएट करने का है, इसके प्रॉपर्टीज। ओके, क्या बेस हमने इसको कैसा डिफरेंशिएट किया, प्रॉपर्टीज। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोनों के मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज इंडिकेट करते हैं। बोथ ऑफ देम इंडिकेट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, ना अभी ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम सोचें। प्रॉपर्टीज है करेक्ट, वी आर डिफरेंशिएट और सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो बट ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जब भी ये वर्ड आता है एक्चुअली बिलोंग्स टू द अपीयरेंस। ओके, फिजिकल मीन्स व्हाट, इट बिलोंग्स टू द अपीयरेंस। केमिकल्स, हाउ इट रिएक्ट्स विद केमिकल्स इन लिक्विड्स। ओके, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसके प्रॉपर्टीज दो इसमें कैटेगराइज किया होता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द अपीयरेंस, हाउ द थिंग इज लुक लाइक। ओके, वो चीज दिखती कैसे है, उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका जो रिएक्ट करना फिजिकल, वो शेप चेंज करता है या नेचर करता है, ब्रिटल है, हार्ड है, दैट ऑल रिलेटेड प्रॉपर्टी। बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ इट रिएक्ट्स विथ केमिकल। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, आयरन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी आयरन इज वेरी हार्ड। ओके, फिजिकली क्या है, आयरन दिखने, उसको जब हम टच करते हैं, वी कैन नॉट कंप्रेस इट, हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्या, वी कैन नॉट कंप्रेस इट, इट इज क्वाइट हार्ड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हार्ड। बट व्हेन वी थ्रो दैट आयरन इनटू द ओपन स्पेस, when it reacts with the moisture and oxygen, वो क्या करता है, रस्ट करता है।
सो ये रस्टिंग होना दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी. समझ में आ गया? रस्टिंग होना मतलब आयरन क्या कर रहा है, इट इज रिएक्टिंग विद मॉइस्चर एंड एयर. ओके, सो केमिकली उसमें चेंज आ रहा है. जैसा कि अभी फिजिकल चेंज हार्ड, अभी मैंने एक आयरन लोहे का एक रॉड लिया, उसको मारा 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 एकदम पतला कर दिया मैंने, उसको मार मार के एकदम शीट बना दिया. मेरे को नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं, मुझे फिर से उसको रॉड बनाना. मैं इसको फिर से रॉड में क्या कर सकता हूँ, आई कैन कन्वर्ट इट, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ. बट ये बोला ये आयरन रॉड अच्छा है निकला, चलो इसको रस्ट करेंगे. मैंने इसको फेंक दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है. 6 महीने के बाद जाके उठा कर लाया, आयरन रस्ट हो गया. नहीं, मुझे फिर से वैसे ही फ्रेश वाला आयरन चाहिए. फिर से मिलेगा क्या? फिर से मिलेगा? यस. सो जब भी ये जो फिजिकल चेंज होता है ये टेम्पररी होता है, केमिकल चेंज होता है ये परमानेंट होता है. सो इट रिलेट्स टू द प्रॉपर्टीज. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, उसका जो अपीयरेंस होता है, लस्टर्स, नॉन लस्टर्स, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनरस, ये सारे जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है. और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाउ इट रिएक्ट्स विद, हाउ द मटेरियल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो that's it for this introduction session. के लिए इतना ही काफी है. In next video, in next lecture, we are going to learn about the physical properties of metals. We are going to begin with the metals. What are the physical properties of metals that we are going to learn in the next video. That's it for now. Thank you and have a nice day.